And friends, now we have Dr. Girish Ahuja, the moment you were waiting for. It's not that they were waiting, I was also waiting at the same time. Fellow Speaker, of course, Mr. Ashok Batraji, Sanjeev Singhal, Council Member also, the Chief Economic CEO of the Water Kluwer, Mr. Shirish Sahaji, Global, of course, Global Detail, Mr. Pradeep Gaur, Dr. Ravi Gupta, Mr. Arun Ahuja, Sandeep Katuria, of course, the treasurer of this, two past chairmen sitting in front of me, Raman Manglaji, Raj Chawlaji, and of course, Mr. Praveen Bhatia, ladies and gentlemen. Well, friends, something which Mr. Chopra mentioned, the first thing is, there was a rumor, let me tell you. There was nothing of that sort, that inheritance tax is coming. This rumor was spread by the chartered accountants only, to get the business, to create private trust. Which chartered accountants? You can understand. The big one. Many clients came to us also. We and myself were sitting there. Many clients came. And they were all saying that we are being recommended to go for private trust or this, so that you can avoid this inheritance tax. I told them, why are you coming at this point of time? Even if it comes, what will happen? We can do it later also, if you want. Or if you do it now, unless you transfer the assets to the private trust, what is the need of having a private trust? So they did not understand the point, but they have made money. You know who made money, I don't want to tell. But there is nothing like that. We also know that when we are making a law, we are not recommending inheritance tax also. So there is nothing to worry about that. What is going to happen later, I can't say. But Mr. Modi wanted to tax the rich people. He wanted to show to the poor people that we have done something, and they have done it. What they have done it? One mistake everybody is committing, that the rate has been increased only for individual. That surcharge is increased for individual, it is not that. The surcharge which has been increased is not for the individual, it is for individual, HUF, AOP, BOI, and artificial judicial person. It's not for individual only. What is that surcharge increased? If your total income exceeds 2 crore, but does not exceed 5 crore, the surcharge instead of 15% will be 25%. 25%. And if your total income exceeds rupees 5 crore, the surcharge will be 37% instead of 25%. Meaning thereby that now the effective rate of tax, which was there above 1 crore, was 35.88%, will be 39% if you are in the bracket of 2 to 5 crore, and 42.74% if you are in the bracket of more than 5 crore. Somebody was asking me, why this surcharge of 25%, such a big amount, surcharge of 37%? The government also plays a role, and they have very cleverly done this 25% and 37% for a different reason. They were saying they could have increased that rate of maximum margin rate from 30 to 33% or 35%. Why they have done? They have increased the surcharge. Answer is, if they increase the rate of tax from 30 to any amount, it has to be shared with the state governments. It has to be shared with the state government. 2/3 goes to the state government and 1/3 remains with the central government. And if they charge surcharge, it will remain with the central government. So government भी एक दूसरे को बेवकूफ बनाती है, हम नहीं. सरचार्ज आप ले गए, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला. अगर रेट बढ़ाते तो स्टेट गवर्नमेंट 2/3 ले जाती है उसमें. So the government played a very good role and increased the surcharge. They have taxed the rich people. मुकेश अंबानी को फर्क पड़ा तो हमें क्या फर्क पड़ा? 14 करोड़ अगर वो सैलरी लेता है तो उसको अगर इसके ऊपर पैसा देना पड़ा, इंक्रीज हो गया उसके लिए 6.89%, तो ठीक है दे, लेकिन उसने कौन से अपनी जेब से देना है? कंपनी से निकाल के ही देना है, अपनी जेब से तो नहीं देना है. वो तो ले लेगा, बट एट द सेम टाइम कंपनी को डिडक्शन 30% की मिलेगी.
But tax, you remember, 42.74% आएगा. So therefore, the rich peoples are going to be taxed if it is above 1. मैंने 2 करोड़ से ज़्यादा करवाया, नहीं तो मैं भी फंस जाता, इसलिए करवा दिया. आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैंने क्या? So there was a reason for that please you want to tax them. Earlier also they have done 15% because wealth tax was abolished. They did it that 15% surcharge above what you call 1 crore. The wealth tax was abolished. They wanted that we should cover up something because we are not getting any revenue from wealth tax. Now they have done it. Inheritance tax need not to be there. So let us tax the rich people and take every year from them instead of taking at one time at the time of inheritance. So that is the idea of taxing the rich people. Coming back. Well, in the case of a company, the promise of the government was that we will reduce the tax rate from 30 to 25% in case all the companies. We remember a presentation was given to us while we are making the law that there are only 1% companies, which are covered under 30%. But if we reduce that 30% to 25%, the loss to revenue is 94,000 crore. Reducing for 1% companies, 20% to 25%, the loss is 94,000 crores. Meaning thereby, these companies are paying tax to the extent of 5 lakh crores. There are only 15,000 assessee in India. Only 15,000 assessee, from where the tax collected is 80%. 80% of the total tax is paid by the 15,000 assessee, and the balance assessee only pay 20% in aggregate. This is the state of the procedure. When we get the information, I was really surprised. Only 15,000 assessee in this country are paying 80% of the total tax revenue of the direct tax revenue. The balance, 20% tax is collected from the rest of them. This is another point which I wanted to tell you. Coming back, now they wanted to give something and 99% are already covered. Now if your turnover of the previous year 2017-18, please note, not 18-19, turnover of the previous year 2017-18 did not exceed, let's say 400 crore. 400, earlier it was 250 crores, now it has been raised to 400 crore, then you have to pay tax at the rate of 25%. Now 99.3% companies are covered. Only 0.7% companies are going to pay tax at the rate of 30%. But that is a big amount, because the loss of this only is only 4,000 crore, whereas the loss was 94,000 crore, meaning thereby 0.7% companies are still paying a very heavy amount of tax. So that's why the reason it was not brought down to 25%, but gradually it is going to come down to 25%. That is the another point. Now let us come back to the section-wise study of this point. 224 he has already told you about demerger, not at book value, but for index purpose it may be at fair market value. He has already told you. Section 9, very interesting. You know that if you receive a money under section 56 to 10, any sum received by a person from any other person or person exceeding rupees 50,000 and immovable property exceeding 50,000 as a gift without consideration, or for inadequate consideration 50,000. Other property also for inadequate consideration 50,000 or gift 50,000 in aggregate. It was taxable in the hands of whom? The recipient, the donee, the recipient. Now people were very clever, and we are, no doubt. We may be suggesting them. Do not receive that money in India. Let that money be received outside India. And he is a non-resident. If he is a resident, there is no problem. Let that money be received outside India. Let that property be received outside India. I am a donor, and he is a donee. He is a recipient. When he is a recipient, he is receiving gift where? Outside India. And if you are a non-resident, only two incomes are taxable. One is income which is received in India or deemed to be received in India, and the second is which income which accrue or rise in India or deemed to accrue or rise in India.
But as this gift was received outside India, there was no provision of deemed to accrue or arise in India. We have section 9(1) having 7 clauses, but there it was royalty, fee for technical services, or interest paid outside India is an income which is deemed to accrue or arise in India. Now they have added to section 9(1) clause VIII, saying that any income referred to under section 2 clause 2417A, what is that? वही जो 56 की gift है. Any income received referred to that if it arises from the money paid, sum paid, or any property transferred outside India, it will be an income which is deemed to accrue or arise in India. अब ये डीम टू अक्रू और राइज मानी जाएगी, इसलिए उस आदमी को जो नॉन रेजिडेंट ने मेरे से गिफ्ट ली है वो टैक्स लगेगा. लेकिन अगर वो मेरा रिलेटिव है तो वो वैसे ही नहीं लगना. वो तो लॉ वैसे ही क्लियर कर रहा है दैट इफ ही हैपेंस टू बी माय रिलेटिव, इफ ही हैपेंस टू बी इन दैट कैटेगरी, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, वी डोंट वांट टू चेंज. But if he is not a relative of mine and I have made a gift to him outside India and he said I'm a non-resident, how can you tax me? I'm a non-resident. It is not an income which is deemed to accrue or rise in India. It is not an income which is received in India. That's why, but this has been inserted from 5th of July 2019. Meaning thereby, prior to that, whatever you have done was fully exempt, was not covered. They have done it now and given a signal that earlier if you have paid any gift to a non-resident outside India, whether it is of a, and what is that property situated in India? Or money, property, then there is absolutely no problem because property situated is otherwise not covered. This property situated in India and money paid in India, but you have given gift outside India, now it is going to be taxed. Earlier it was not taxed. Coming to the next point. We know that in the case of Provident Fund, etc., we have the system of EEE, exempt, exempt, exempt. लेकिन एक एनपीएस स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें जब पहले तो जीरो था, अब आप जब आप क्लोज करते हैं वो नेशनल पेंशन स्कीम और यू आउट ऑफ दैट स्कीम, 60% of the amount received is exempt. Sorry, 60% can be received by you, but 40% was exempt. You could receive 60%, 40% तो आपको रिसीव कर ही नहीं सकते थे, आपको इंस्टॉलमेंट में मिलना था एनपीएस से जो वापस आता, तो वो पार्शली एग्जेम्प्ट थी. लेकिन कितनी एग्जेम्प्ट थी? 40. मिलता 60 था लेकिन 40% तक माफ था, बाकी 20 पे टैक्स देना पड़ता था. इसको इंक्रीज करके 60 कर दिया है. मीनिंग देयर बाई 1012A में जितना आपको मिल रहा है 60% आउट फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ दिस स्कीम or closing this national pension scheme, you will be entitled to get 60%. The whole 60% will be exempt. बाकी 40% के बारे में भी डिमांड चल रही है, लेकिन ये 1012A में अब पूरा 60 माफ कर दिया है. क्योंकि मैं पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूं तो एक और बात करता हूं. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है, आपको पता है वो पहले सैलरी में जुड़ता है और फिर 80CCD में डिडक्शन मिलता है. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, स्टेट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बन गया है, दोज हु हैव जॉइंड आफ्टर 1/12/2004 आर नॉट इंटाइटल्ड टू पेंशन. उसमें एम्प्लॉयर सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है. इवन दूसरे एम्प्लॉयर भी अब करने लग गए नेशनल पेंशन. लेकिन 80CCD में डिडक्शन थी 10% ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया 10% ऑफ सैलरी तक अलाउड था. 10%, अभी भी 10 ही है. लेकिन हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय के लिए ये कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया. सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट 10 के बदले 14 करा, पर डिडक्शन अगर 10 की मिलेगी तो प्रॉब्लम आएगी. इसलिए उन्होंने 80CCD में लिख दिया, in the case of central government, deduction will be allowed to the extent of 14% of the salary. In any other case, it is allowed only 10%. Clear हुआ? ये 80CCD में चेंज इसलिए करना पड़ा कि गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन अपना बढ़ा दिया है. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया, इसलिए डिडक्शन भी अब उनको 14% मिल जाएगी, क्योंकि पहले सैलरी में 14% जुड़ेगा और फिर 80CCD में 14% लेस हो जाएगा. क्लियर है?
ये चेंज आया सर सेक्शन 10 और क्लॉज 12A में। मैं 15 वाला सेक्शन की बात नहीं करना चाहता, वो तो इंटरेस्ट है, वो माफ़ होगा। अगर आउटसाइड इंडिया से आया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में मिला, वो एग्जेम्प्ट है। अब थोड़ी सी चीज़ें पहले समझ लीजिए 12AA का क्या बेड़ा कर रखा है। आप अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। 12AA1 में आपको उसको द कमिश्नर कैन कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रस्ट and see that it is powering out it is for the purpose of the object you are going to carry. जेन्युइननेस के लिए वो डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन मांग सकते थे और फिर आपको रजिस्ट्रेशन देते थे कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट या जेन्युइननेस है कि नहीं। अब इन्होंने वो 12AA में एक और क्लॉज डाल दी है कि नॉट ओनली द जेन्युइननेस बट दे विल कॉल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन ऑल्सो टू सी दैट यू आर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अदर लॉ। You are complying with the requirements of other law also, which are material to the carrying of the object. मतलब अगर आप सोसाइटी हैं और सोसाइटी है तो आप चैरिटेबल सोसाइटी तो हैं, आपको एग्जेम्पशन तो मिलेगी, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो देखेगा कि अगर सोसाइटी एक्ट का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है जो आप फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं देगा। अगर सेक्शन 25 है, जो आजकल सेक्शन 8 हो गया, उसकी कोई रिक्वायरमेंट है एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दैट रिक्वायरमेंट एंड इफ यू डोंट कंप्लाई विच इज मटीरियल टू द ऑब्जेक्ट, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। पहले उसको पावर नहीं था, दूसरे लॉ में क्या हो रहा है, तू अपने लॉ में देख दूसरे में क्या है, लेकिन अब वो कॉल फॉर डॉक्यूमेंट एंड कैन वेरीफाई वेदर यू आर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ और नॉट। सिमिलरली जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो करता था कि आपके ऑब्जेक्ट यू आर नॉट कैरिंग ऑन और यू आर मिस यूजिंग द फंड और आउट, लेकिन इस केस में भी अगर आप requirement of law of under other law you are not following, he can cancel the registration here also. मेरा मतलब है जैसे बॉम्बे में पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, बॉम्बे में पब्लिक वेलफेयर, हमारे यहाँ और नहीं, पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट है, वहाँ भी कुछ कंडीशंस हैं, वहाँ में भी कुछ कंप्लायंस है, सोसाइटीज़ की भी कंप्लायंस है, सेक्शन 8 कंपनीज की भी कंप्लायंस है। अगर वो कंप्लायंस आपने नहीं की विच इज और फिर आपके ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करता है तो कमिश्नर विल हैव ए पावर to cancel the registration although you are complying these provisions but you are not complying the provisions under other law। ये एक और हार्ड स्टेप कर दिया जब अब एक गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए आपको पता है कई सेक्शन में लिखा है द पेमेंट शुड बी मेड बाय वे अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक, बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक। अभी तक किसी को यही नहीं पता पेटीएम से पेमेंट करी या रूपे से पेमेंट करी या कोई और ऐप से पेमेंट करी तो क्या वो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। वी डोंट नो। द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट बाय अकाउंट पे चेक, द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट बाय क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक, द मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, लिखा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक। व्हाट अबाउट दिस? तो उन्होंने लिख दिया जितने भी सेक्शन थे स्टार्टिंग फ्रॉम 13A जो उसके लिए था पॉलिटिकल पार्टी की डोनेशन 2000 से ज़्यादा लेनी है तो 35AD अगर आपने 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन लेनी है तो द एसेट शुड बी परचेज थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे 35AD लिखा है। सेक्शन 40A सब सेक्शन 3 वो 10,000 की जो पेमेंट करते हैं अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम 40A4 वो उसी से रिलेटेड है, पिछले साल का पेमेंट अब किया। या सेक्शन 50C कि आपका जो पेमेंट आपने रिसीव कर ली बिफोर एग्रीमेंट का तो वो भी वहाँ पर कवर कर दिया। फिर आप सेक्शन व्हाट यू कॉल 80AA सेक्शन 269S 269ST सेक्शन 269U जितने भी सेक्शनों में ये वर्ड है आप जाकर देख लेना, सब में लिख दिया थ्रू एन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट और थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वो इलेक्ट्रॉनिक मोड को प्रिस्क्राइब कर देंगे और आपको उस इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट भी अलाउड होगी। जो अभी तक क्लियर नहीं था पेटीएम से पेमेंट करो पेटीएम से, पर क्या वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है थ्रू ए बैंक? इज इट ए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू ए बैंक? नॉट वेरी क्लियर बिकॉज बैंक से नहीं आता। पेटीएम में तो आप पैसे कैश जमा कराते हैं और उसको उधर से ट्रांसफर उसको कर दो उसको कर दो उसको कर दो, अल्टीमेटली क्लियरिंग सिस्टम है कि नहीं। अब वो मेंशन कर देंगे कौन कौन से ऐप से पेमेंट करते हो। आजकल तो अमेजन के ऐप से भी पेमेंट हो जाती है, रोज ही देखते हैं 6,000 रुपये मामा बन गया 6,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, देखते हैं ना आप रोज टीवी पे देखते हैं। बनाया नहीं वो बना है
तो वो सब चीजों के लिए ये लॉ बना दिया, इन सब सेक्शनों में ये चेंज कर दिया। इसी वजह से एक और सेक्शन भी चेंज किया, नया सेक्शन डाला है 269 SU। मैं बिजनेस करता हूं, आई एम कैरिंग ऑन ए बिजनेस, मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, माई टर्नओवर, आई विल हैव टू प्रोवाइड ए फैसिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द मनी, एक्सेप्टिंग द पेमेंट बाय ए प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। मुझे अब ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी मुझे कि मेरा जो बायर है, मेरा जो पेमेंट करने वाला, क्या होता था, वो मेरे कैश जमा करा देता था मेरे बैंक में। आपने सुना मेरी निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो बैंकों में कैश जमा करा देती है दूसरी पार्टी। आप कहते हैं मेरे बैंक में ही तो जमा हुआ, तो ये क्या दिक्कत हुई? कहता ना, अब हम वो 50 करोड़ से ऊपर वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मोड प्रिस्क्राइब करेगा और उस इलेक्ट्रॉनिक मोड के पश्चात उसको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इवन इंस्टेड ऑफ अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट और इवन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ये अब आएगा 50 करोड़ के ऊपर वालों को कुछ प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा प्रिस्क्राइब मोड्स में कि ये फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं और आप इस फैसिलिटी से हमें पेमेंट कर दीजिए। हम कैश बैंक में नहीं जमा कराने देंगे, इस फैसिलिटी से हमें पेमेंट कर दीजिए। ये 269 SU आया है। उसी के हिसाब से 1271 DB पेनल्टी भी डाल दी है कि अगर वो सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो 5,000 रुपीज पर डे डिफॉल्ट की पेनल्टी लगेगी। सो दे विल कम आउट विद द रूल्स और उस रूल्स में बताएंगे और हर आदमी जो 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर कर रहा है, चाहे किसी भी तरह से पेमेंट ले रहा है, अभी उसको ये सिस्टम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मोर डिजिटल टाइप में थिंग, ये एक नई चीज डाली है जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज बड़ी अच्छी चीज आई है, हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डिडक्ट द TDS फॉर एनी रीजन, और वी हैव डिडक्टेड द TDS बट नॉट डिपॉजिटेड बिफोर द ड्यू डेट मेंशन्ड अंडर 139(1). तो क्या होता है, 100% ऑफ दैट एक्सपेंस इज डिसअलाउड। ये लॉ है 40AI कि 100 का 100% डिसअलाउड, 40AI में 30% डिसअलाउड होता है। Am I right? वो इंडिया में करते, रेजिडेंट को करते हैं। अब क्या हुआ, 40AI में तो हमने लिख दिया कि अगर मैंने पेमेंट नहीं, TDS नहीं काटा, बट सेक्शन 201 में एक प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट द रिसिपेंट, दैट पर्सन, he has filed his return of income, he has included that income and he has paid the appropriate tax on that, and you obtain a certificate from a chartered accountant under form number 26A, तो आपको वो डीम्ड पेमेंट मानकर वो डिसअलाउंस बंद हो जाए। Am I right? ये रूल है ना, 26A का फॉर्म भर के देते हैं ना आप कि भैया उस आदमी ने टैक्स दे दिया है, मैंने नहीं TDS काटा, लेकिन वो आदमी जिसका TDS कटना था उसने अपनी रिटर्न भर दी है, उसने उसमें वो इनकम ऐड कर ली है, उसने उसके ऊपर जो टैक्स बनता है सब दे दिया है, और मैंने एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का 26A फॉर्म में, तो मुझे ये डिडक्शन मिल जानी चाहिए। वाई शुड 30% भी डिसअलाउड? बिल्कुल डिट्टो प्रोविजन नॉन रेजिडेंट का भी कर दिया कि अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देंगे, उसने अपनी नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दी है, उसने वो इनकम को वहाँ डाल रखा है और टैक्स पे कर दिया है, तो इस केस में मेरा वो 100% डिसअलाउंस नहीं हो। बिल्कुल डिट्टो प्रोविजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई फर्क नहीं है, सेम लाइन सेम थिंग, बट वहाँ नॉन रेजिडेंट के केस में, यहाँ रेजिडेंट के केस। तो ये क्लियर कर दिया, 201 का प्रोविजो यहाँ भी लगेगा और 40AI में भी लगेगा। क्लियर है सर? ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने बताई। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, आपको तो पता है क्या बेड़ा खर्क हुआ। प्रॉब्लम क्या है, एक सेक्शन 43D और एक सेक्शन 43B। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एटसेट्रा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, if it is outstanding, if it is not paid, if it is payable on 31st March, deduction will be allowed to you. Only the payment of the same is made on or before the ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। सबको पता है, जैसे बोनस कमीशन होता है, टैक्सेस होता है, वैसे ही इंटरेस्ट की डिडक्शन अगर आपको उसी साल लेनी है तो यू शुड पे बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर 139(1). अदरवाइज डिडक्शन विल अलाउड इन द ईयर इन विच द पेमेंट इज मेड। ये तो सबको पता है 43B। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में कवर्ड नहीं थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी तो आप इंटरेस्ट लोन लेते हैं, उनको पैसा इंटरेस्ट नहीं मिलता था, और आप ड्यू बेसिस में क्लेम कर लेते थे, उनको देते ही नहीं थे। इनको भी 43B में डाल दिया दैट इन केस ऑफ ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, कौन सी? दो तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एक डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी,
एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये क्या है भैया? एक तो होता है जो एनबीएफसी डिपॉजिट लेती है और डिपॉजिट लेकर लोन देती है, वो होता है, आई एम राइट, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एक है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंस कंपनी। उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर वो डिपॉजिट नहीं लेती तो उनकी एसेट्स कम से कम 500 करोड़ रुपए की होनी चाहिए एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, तो वो एनबीएफसी बनती है। एंड दे बोथ आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट। तो दोनों एनबीएफसी को कह दिया कि आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैड एंड डाउटफुल डेट है, उसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन दैट, वो इंटरेस्ट तो पहले वो आपको इनकम लेनी पड़ती थी, लेकिन बैंक लेते कब है? पर बैंक बैड एंड परफॉर्मेंस एक्ट अंडर 43B व्हेन इट इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। जो भी हमारे एनपीएस है उसका इंटरेस्ट हम इनकम नहीं गिनते बैंकों में, हम इनकम नहीं गिनते। कब गिनते हैं? जिस साल मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर देता हूं, हालांकि सस्पेंस में डालते हैं, या जिस साल मैं उसको एक्चुअली रिसीव करता हूं। लेकिन ये फैसिलिटी बैंकिंग नॉन बैंकिंग को नहीं थी। 43D इनके लिए भी अलाउ कर दिया कि आपको बैड एंड डाउटफुल डेट का इंटरेस्ट के ऊपर इनकम टैक्स नहीं देना। कब देना है? व्हेन इट इज रिसीव्ड और इट इज टेकन इनटू द प्रॉफिट। बिल्कुल डिट्टो बैंकों के हिसाब से। जब कंट्रोल ही रिजर्व बैंक करेगा, सो व्हाई सेपरेट ट्रीटमेंट फॉर 43B एंड व्हाई सेपरेट ट्रीटमेंट अंडर 43D? सो नॉन बैंकिंग को एक बहुत एडवांटेज मिला है। दे विल बी बेनिफिटेड टू ए ग्रेट एक्सटेंट। पता ही है क्यों हुआ? आपको पता है कितने करोड़ों रुपए का घपला हो गया, वो इस चीज के लिए अब इन्होंने ये अलाउ कर दिया गया। सो दिस इज द अनदर चेंज। नेक्स्ट चेंज 54GB। मैं तो हालांकि इसमें बड़ा खुश नहीं होता। अपना मकान बेचो और बिजनेस स्टार्ट करो। जिंदगी में एक ही तो मकान है, उसको बेचकर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। मैंने कई बार कहा, लेकिन अभी भी 54GB था। 54GB का था कि आप कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड और बिल्डिंग। रेजिडेंशियल लैंड और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। चोपड़ा जी कह रहे थे ओनली हाउस, नहीं, रेजिडेंशियल लैंड और बिल्डिंग आपके पास है, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो नेट कंसिडरेशन प्राइस, अगर आप एक कंपनी टू बी इनकॉर्पोरेटेड में शेयर्स खरीद लीजिए, एलिजिबल कंपनी, उसके शेयर खरीद लीजिए और उस शेयर्स के पैसा जो आया 1 साल के अंदर उसमें एसेट्स खरीद लीजिए, एलिजिबल कंपनी, तो हम आपको 100% उसकी एग्जेम्पशन दे देंगे। 54GB में ये लिखा है कि आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची विच इज लैंड और बिल्डिंग, where is a long-term capital gain, if the entire net consideration price is subscribed for the purchase of share of the company which is incorporated on or after data 1/4/2016, तो हम वो शेयर जो का पैसा आएगा कंपनी को, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है, वो स्टार्टअप हो सकता है, इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और स्टार्टअप, दे विल इन्वेस्ट इन दी प्लांट एंड मशीनरी ऑफ दैट स्टार्टअप और दैट एलिजिबल कंपनी। लेकिन उसमें एक और कंडीशन है कि 50% आपका शेयर कैपिटल होना चाहिए, आपका 50% उस कंपनी में। और एक और कंडीशन है, जो एसेट्स हैं वो 5 साल तक आप बेच नहीं सकते। अगर जो एसेट आपने खरीदी उस पैसों से 5 साल के अंदर बेच देंगे तो जो 54GB का बेनिफिट मिला था वो आपको टैक्स लग जाएगा। 3 चीजें चेंज कर दी। एक तो इसकी लिमिट थी 31 मार्च 19 की, इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू 31 मार्च 2021। पहले लिमिट थी 50% कैपिटल, इस लिमिट को ब्रॉट डाउन टू 25% कर दिया। तीसरी थी कि आप इसको ट्रांसफर नहीं करते एसेट, लेकिन उनके कहा कि कैसे है, हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसकी तो लाइफ ही 5 साल नहीं है, तो वाई आर वी मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन दैट, तो हमें तो नुकसान हो जाएगा, वी सेल वी विल हैव टू पे टैक्स। तो उन्होंने कह दिया ओनली इन केस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द पीरियड विल बी रिड्यूस टू 3 years, for all other the period remain 5. So yes, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज कर सकते हैं, एलिजिबल हो, और आपने हाउस बेचकर अगर वहां पैसा लगाया तो आपका वो पूरा का पूरा कैपिटल गेन 54GB में नेट कंसिडरेशन पूरा लगाया या प्रोपोर्शनेट माफ होगा, और आप उसकी कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेंगे। ये है जी 54GB जो आपको अब एक्स्ट्रा उनको दोबारा बेनिफिट दे दिया कि स्टार्टअप कह रहे थे हमारा पैसे तो हमारे पे है ही नहीं, हम कोई मकान प्रॉपर्टी बेचेंगे और पैसा वहाँ लगाएंगे तो कम से कम उसकी एग्जेम्पशन तो हमें दे दो। सो दैट एग्जेम्पशन हैज बीन गिवन। नेक्स्ट पॉइंट,
देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, आप सोच रहे ये बजट खराब है, ऐसा नहीं है। हमें जो फाइनेंस बिल पहले आ चुका है, गोयल साहब ने, पीयूष गोयल साहब ने किया था, सारे बेनिफिट तो वहाँ दे दिए थे क्योंकि वो इलेक्शन बजट था। आपको बेनिफिट तो दिया गया, दैट नो टैक्स इफ योर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड। तो ये तो ऑलरेडी इसी साल का है, तो पुराना थोड़ी है। वो कहते हैं ना, हम पुराना भूल गए, आगे क्या दे रहे हैं। अरे है तो इसी साल का वो कि 5 लाख तक आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। और 5 लाख में क्या चीज है? टैक्सेबल इनकम। अरे सर, आप 8-9 लाख कमाएं और टैक्सेबल इनकम 5 लाख ले आए तो भी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि 1.5 लाख आप डिडक्शन ले लें ATC में, आप 50,000 रुपया डिडक्शन ले लें NPS का, आप 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लें, ये सारे बेनिफिट, और आप मेडिकल क्लेम ले लें, ये सारे की सारी डिडक्शन देने के बाद ही तो 5 लाख है। और 5 लाख माफ है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि 87A में रिबेट मिलती है। रिबेट तो 87 में है, तो अभी भी है। हाँ, 5 से ऊपर जाते हैं, ऑब्वियसली यू हैव टू पे टैक्स। वो तो मैंने आपको बताया था, तब तो 20% रेट है, वो हम देख रहे हैं नए लॉ में। बट एट दिस पॉइंट ये बेनिफिट आपको मिला हुआ है। आपको तो 2 बेनिफिट मिले थे, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 40,000 की 50,000 कर दी थी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। वो क्यों भूल जाते हैं हम? ये भी कर दिया था कि आप 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। Am I right or wrong? 2 houses can be self occupied। पहले एक ही हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड होता था। ये भी तो बेनिफिट दिया गया था। ये भी तो बेनिफिट दिया गया था कि जो वो वाली कंपनी है, ये ATIA वाली, उनको बेनिफिट दे दिया कि 1 साल और एक्सटेंड कर दिया था, 31 मार्च 2020 कर दिया था हाउसिंग प्रोजेक्ट टू बी अप्रूव्ड। ये बेनिफिट भी तो उस वक्त दिया था। अब उसके अंदर कोई और भी इनवाइट डाल दिए ATIBA की, मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको तो तकलीफ होगी। लेकिन वो वाले प्रोजेक्ट 1 सितंबर के बाद वाले, पुराने में कोई तकलीफ नहीं। सो मैं क्या बता रहा हूं कि ये बेनिफिट भी दिया था, और ये बेनिफिट भी तो दिया था कि इंटरेस्ट जो FDR और टाइम डिपॉजिट पर है वो अब 10,000 पे भी नहीं कटेगा। कितने पे? 40,000। ये भी तो उस वक्त बेनिफिट दिया था। और ये भी तो किया था, रेंट अंडर 194I लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 1,80,000 टू, वो तो हम भूल चुके हैं ना। ये क्या बजट है? अरे सर, वो भी तो इसी के साथ है। तभी तो रवि जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी, इसी किताब में वो पुराना भी डाल देना, और डाला हुआ है आपके पास। आपको नजर आएगा कि वो वाली चीजें इसी के अंदर हैं, और ये होनी भी चाहिए। वाई? बिकॉज इज द पार्ट ऑफ द सेम। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कमिंग बैक, अब और एडवांटेज क्या दिया सर? एडवांटेज दिया है, एक 80EE सेक्शन पहले भी होता था, 80EE, कि आप 1/4/2016 से 2017 तक अगर एक लोन सेंक्शन करा लो, अगर लोन सेंक्शन कराकर एक हाउस खरीद लो, तो आपको एक एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी इंटरेस्ट की अंडर 80EE, और वो थी पहले उस वक्त 50,000। अब क्या किया, एक नया सेक्शन डाला 80EE। को EE वाले तो अभी भी ले रहे हैं ना, अब EEA नया सेक्शन डाल दिया। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु गॉट द लोन सैंक्शन, लोन कब सैंक्शन कराना है? फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिटवीन 1 अप्रैल 2019 एंड 31 मार्च 2020, इसमें लोन सैंक्शन करा लो, एंड यू बाई ए हाउस विद दैट अमाउंट। बट नाउ द हाउस लिमिट विल बी 45 लाख। पहले 35 था, इसमें कहते हैं 45 लाख के ऊपर का मकान नहीं होना चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी कोई मकान नहीं होना चाहिए। तो हम आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन देंगे, कितनी? 1,50,000। अरुण जी ने मुझे कह दिया, रवि जी ने कहा, क्या लाए, 1.5 लाख 2 लाख तो ऑलरेडी मिलता है हमें ऊपर 24B में। मैंने कहा वो तो अभी भी मिलेगा, ये तो एडिशनल डिडक्शन है 150, आप 3.5 तक नहीं जा सकते। ये तो ऐसा नहीं है। 40 लाख के लोन, 40 लाख पे 9% हुआ तो 360 होता है, सब 3.5 मिलेगा। ऐसे क्यों कह रहे हो आप? और 40 में 8-20 भी होता है तो 3-20 होता है, 2 वहां लेना और 1-20 यहां लेना। सर ऐसा ना कहो, सर ऐसा ना कहो, मोदी जी पर नाराज हो जाएंगे, ये मत कहो। अरे आपको घर के लिए एक इंसेंटिव दिया गया है, और ये इंसेंटिव जब तक आप लोन नहीं रीपे करोगे तो मिलेगा ना। जब तक आप लोन नहीं रीपे कर रहे आपको मिल रहा है, इट इज एन एडिशन। अरे कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यू आर गेटिंग ए गुड एडवांटेज ऑफ 80EE। छोटे लोग जिनके पास पैसे नहीं है, अपना घर 2022 तक मोदी जी ने सबको देना है, तो लो ना अपना घर, बोरो करके आप घर खरीदिए। 45 लाख से ऊपर ना हो, जितना इंटरेस्ट होगा कुछ यहाँ ले लीजिए, बाकी। और वहाँ तो और भी मिलता है ना, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी का भी मिलता है, वहाँ तो हर चीज़ का मिलता है। या तो ओनली रेजिडेंशियल है और आपके पास कोई और रेजिडेंशियल नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छा पॉइंट है सर, इसको बुरा नहीं मानिए।
ठीक है जी, ठीक है सर। 80EE पता है, उन्होंने भी बताया कि ई व्हीकल खरीदो। आजकल प्रॉब्लम क्या है कि पोल्यूशन बहुत है। बाई ई व्हीकल, अभी नया नया ई व्हीकल का कॉन्सेप्ट आया, लोग बाई नहीं करना चाहते, चार्जिंग की प्रॉब्लम होगी, चार्जिंग होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन होगा, उन्हें कर लीजिए, यू बाई एन ई व्हीकल। ई व्हीकल डज नॉट मीन कार, इट कैन बी मोटरसाइकिल ऑल्सो, एनीथिंग। You will be allowed interest on the purchase of जो किया आपने बोरो किया for purchase of e-vehicle, you will be given interest to the extent of rupees 1,50,000. 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक डिडक्शन अंडर एनी अदर। मतलब बिजनेसमैन को तो डिडक्शन ऑलरेडी मिल जाता है, तो उस बात को इंटरेस्ट किस बात का लेना है? ये तो सैलरीड एम्प्लॉय है, और उस सैलरीड एम्प्लॉय ने कार खरीदी, अगर कार खरीदी तो वो डिडक्शन कहाँ लेता था? अब उस इंटरेस्ट का डिडक्शन 1.5 लाख उसको मिलेगा ना। ऐसा है कि नहीं है कि वो सैलरीड एम्प्लॉय है सर, वो कहाँ डिडक्शन मिलता था? या ऐसा एम्प्लॉय है जो बिजनेस की कार नहीं लेना चाहता, पर्सनल लेना चाहता है, तो लेना, हम 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन देंगे ई व्हीकल का। वहां लिखा था एक कार ले सकते, लेकिन लॉ में ऐसा कुछ लिखा नहीं। वो उसमें लिखा है मेमोरेंडम में, ही कैन नॉट बाई मोर देन 1 कार। लेकिन जब लॉ पढ़ो, व्हीकल मीन्स कार, मोटरसाइकिल, जो भी कह लो, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यू कैन बाई। ये एक बड़ा अच्छा इंसेंटिव है सर, और उनके लिए है जो मोटरसाइकिलें खरीदते हैं। और ये 1.5 नहीं, कुछ तो मिलेगा ना। अरे वो गरीब आदमी के लिए तो ये भी बहुत है जो ये डिडक्शन मिला, और अमीर आदमी के लिए 10 लाख की कार खरीदे 1.5 लाख का डिडक्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए? तो ये एक एडवांटेज है सर जो इन्होंने 80EE में टू प्रमोट टू अवॉइड पोल्यूशन, और वही डीजल गर्म नहीं लगेगा, और आपको ये फायदा मिलेगा विच इज देयर अंडर ETEEB। नेक्स्ट चीज इंतजार कर रहे हैं 80IBA। लास्ट क्या था, पिछले दो फाइनेंस बिल में प्रोजेक्ट अप्रूव करना था बिटवीन अप टू 31 मार्च 2020, याद होगा, 1 साल बढ़ा दिया था। अब क्या किया है, अगर कोई प्रोजेक्ट आप अप्रूव करेंगे ऑन और आफ्टर 1 सितंबर, पुराने चल रहे हैं, ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019 जो आने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट में आपको कई बेनिफिट दे दिए गए। वो बेनिफिट डिफरेंट नेचर के हैं। अभी तक तो बेनिफिट था यू कुड कंस्ट्रक्ट ओनली 30 मीटर और 60 मीटर। 30 मीटर था मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अदर प्लेसेस 60 मीटर। अभी था कि 1000 मीटर से कम नहीं होना चाहिए प्लॉट, और वो 2000 से नहीं होना चाहिए। अब क्या कर दिया कि अब 60 मीटर तक आपका हो सकता है। कहाँ? दिल्ली, सॉरी आई एम नॉट सेइंग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, NCR, please note the word, now it is NCR, not Delhi. NCR includes Delhi, Ghaziabad, Gurgaon, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये भी आ गया। और कितने मीटर? 60 मीटर, और बाकी 90 मीटर। वहाँ 60 का 90 कर दिया, इधर 60 मीटर कर दिया कि आप बड़े बना सकते हैं। लेकिन एक नुकसान भी कर दिया है, वो घर 45 लाख से ऊपर ना हो। अभी तो 77 लाख का बेच रहे हैं आप, वो अलाउड है, पुराना था। नए में 45 लाख से ऊपर का वो नहीं हो सकता। ये रिस्ट्रिक्शन डाल दी है जो पहले नहीं थी। लेकिन ये भी डाल दिया कि ये जो मुंबई, सॉरी बेंगलुरु, हैदराबाद, NCR में अब नॉट लेस देन 1000, नॉट लेस देन 1, वहाँ 2000 नहीं है, 1000 कर दिया। 3% कमर्शियल तो आपको पहले भी अलाउड है। सो देयरफॉर ये एडवांटेज फर्दर दिया गया। बट डोंट थिंक कि 1 सितंबर 2019 के बाद ये परमानेंट है। वो 31 मार्च 2020 तक ही है, प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड। ऐसा नहीं है, क्योंकि कईयों ने पढ़ा ही नहीं कि वो पहले 20 तक ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया है। ये तो फर्दर एडवांटेज दी गई। सो 80IBA इज दिस टाइप ऑफ एडवांटेज विच यू आर गोइंग टू गेट, एंड इट इज अ गुड थिंग। आई थिंक योर बिजनेस शुड प्रॉस्पर फर्दर, और आपको तो सब बेनिफिट ये मिलने चाहिए जो आपको हैं। आइए सर, और भी बड़े इश्यूज हैं। 139 अमरजीत चोपड़ा जी ने कहा कि जो इंडिविजुअल जाता है उसके 2 लाख से ऊपर फॉरेन बिल है, या 1 करोड़ से ऊपर उसने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, और तीसरा जो बिजली का कंजम्पशन है। काइंडली नोट, ये इंडिविजुअल नहीं है, सबके लिए है। इंडिविजुअल HUF फर्म, सॉरी इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल यूरिडिक्शन पर्सन,
इनमें से जो रिटर्न नहीं भरता उसको अब भरनी पड़ेगी। अगर उसने खर्चा किया इलेक्ट्रिसिटी में 1 लाख से ऊपर कंजम्पशन में, या ट्रैवल किया, खर्चा इंडिविजुअल ने नहीं किया, एचयूएफ ने किया, उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। या डिपॉजिट करा दिया तो उसको रिटर्न करंट अकाउंट में 1 लाख से ऊपर, क्योंकि आप 44 AD है, 44 AD है, आपने डिपॉजिट करा दिया, मैंने ये थोड़ी कहा कैश डिपॉजिट, तो आपको रिटर्न भरनी ही पड़ेगी। वेदर योर इनकम इज 2,50,000 और लेस देन 250 डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपको तो भरना ही पड़ेगा। ये किसी जमाने में पहले भी होता था, AIR की इंफॉर्मेशन से आपको रिटर्न भरना जरूरी होता था। अब ये 3 ये डिपॉजिट इन द बैंक, करंट अकाउंट सर, यही नहीं मैं समझ में आया करंट क्यों लिखा है, सेविंग भी तो लिख देना चाहिए था, एनी बैंक अकाउंट, बट करंट अकाउंट लिखा है, 1 और मोर देन 1 करंट अकाउंट। ये 3 चीजों के लिए अरे रिटर्न तो सारे भर ही रहे हैं। जो 2 लाख वहां जाके खर्च करता है, क्या मतलब है वो रिटर्न नहीं भरता होगा? भरता ही होगा, लेकिन जो एचयूएफ से खर्च करता है तो पकड़ा जाएगा अगर रिटर्न नहीं भरी हो। वो पॉइंट है कि उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी। हाँ जी, आधार कार्ड का तो आ रहा हूं, वो तो आधार कार्ड तो पहले भी था, या पहले पैन नंबर था, आधार कार्ड था, नहीं तो 60-61 देना था, वो भी आ रहा हूं। एक और आपको रिटर्न भरनी है जब आपकी एग्जाम 2,50,000 से ऊपर हो, यही है ना इंडिविजुअल फर्म, सॉरी इंडिविजुअल AOP, BOI, आर्टिफिशियल यूनिट पर्सन, HUF। एक लिखा था बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A और चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के डिडक्शन से पहले अगर 2.5 लाख से ऊपर रिटर्न भरनी जरूरी थी, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल गेन आया, 54 का बेनिफिट ले लिया, एग्जेम्प्ट है, तो नीचे तो ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा माफ हो गया। 54B का बेनिफिट ले लिया, 54EC का बेनिफिट ले लिया, 54D का बेनिफिट ले लिया, 54F का बेनिफिट ले लिया, 54GA का बेनिफिट ले लिया, और जब बेनिफिट ले लिया वो तो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं है, तो इसलिए वो भी रिटर्न नहीं भरते थे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेचो, लेकिन उसमें कैपिटल गेन पूरा लगा दिया तो पता ही नहीं लगता था। अब बिफोर क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54GA, 54GB, उसके लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना, ये प्रोवाइजो 6 को चेंज किया, और वो जो पहला मैंने बताया वो प्रोवाइजो 7 डाला है। ऐसा नहीं है, मोस्टली भर रहे हैं। हमें किस बात का डर है, हम तो भरते हैं। वो जो चोर है वो पकड़ेगा ना, हमें क्या लेना देना पड़ेगा, भरा गए तो जी वहां पर जाओ, तो वो जो जाओगे कहां पर, कहां बोले डिज्नीलैंड में जाना, तो फोटो मत खिंचवाना, फोटो खिंचवा के फेसबुक में डालना, लेकिन रिटर्न भर देना। आप में क्या दिक्कत है, रिटर्न तो आप नॉर्मली भरते ही हैं। ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो 2 लाख रुपए बाहर खर्च करके आएगा वो रिटर्न, हम उनको पकड़ना चाहते हैं जो गलत काम वाले हैं। बाकी नॉर्मल आदमी को कोई फर्क ही नहीं है, वो रिटर्न ऑलरेडी भर रहा है। हमने उससे इंफॉर्मेशन थोड़ी मांगी है कि तू डिज्नीलैंड गया था कि नहीं गया था, वो तो अपने आप हमें पता लग जाएगा। वो तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट प्रोजेक्ट इन एक बन रहा है, प्रोजेक्ट इन इनसाइट, 360 डिग्री प्रोफाइल सबका है। मैं आपको बता सकता हूं आपने अपने पैसे डिमोनेटाइजेशन के अपने कितने पैसे जमा कराए थे, मुझे अपना पैन नंबर दे दो, कल आपको बता दूं। ये इंफॉर्मेशन उनके पास है। मैं आपको बता सकता हूं कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितने शेयर्स हैं, कितने म्यूचुअल फंड हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं, और उनके क्या क्या बैलेंस है, सब कुछ उनके पास है। नई चीज क्या है, ये कितनी बार इंडिया से बाहर गए, उनके पास इंफॉर्मेशन है। आप क्या सोच रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, कोई नई चीज नहीं है। 360 डिग्री प्रोफाइल बना हुआ है। अब तो ये जो कह रहे हैं कि जो रिटर्न ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी, वो है ना जो कहा गया कि वो रिटर्न में जो भी 26 शेयर्स की फिगरें हैं यहाँ आ जाएगी, आपका कैपिटल गेन भी पता लग जाएगा। वो अभी नहीं, थोड़े दिन लगेंगे। वो डाल दिया है, लेकिन अभी तो लिंक करना पड़ेगा। अभी वो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके इंडेक्स भी करना पड़ता है, कई जगह इंडेक्स नहीं होता। सो वेट एंड वॉच, बट थिंग्स आर गोइंग टू कम। लेकिन ये सोच लेना, एक 206 लोग कहते हैं 40,000 के ऊपर FDR पे TDS कटता है या टाइम डिपॉजिट पर, अब 40 से नीचे कटता ही नहीं है, तो 26 CS में आएगा ही नहीं। तो ना ही दिखाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो रिटर्न 26 CS से लेकर ही भरी जाती है, बाकी चीज को देखता ही नहीं, और वो भी ऑटो पॉपुलेटेड हो जानी। बाइडली नोट 206A सेक्शन को बदल दिया है। अब वो बैंक, वो शेड्यूल्ड बैंक, पोस्ट ऑफिस, एवरीथिंग हु आर मेकिंग ए पेमेंट, ए क्रेडिट और पे लेस देन 40,000 पहले भी करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से 26QAA जो भरते थे वो भेजेंगे,
और वो भेजकर वो ऑलरेडी लिंक करके 26 में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये मत समझना कि 40 से नीचे कोई दिक्कत नहीं है, छुपा लो। मोदी जी के राज में छुपना कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। प्लीज छोड़ना मत। हमारे आर्टिकल्स भी कई बार रिटर्न भर देते हैं, सिर्फ 26 देते हैं, बाकी पूछते ही नहीं है कि भैया तुम्हारी कोई 40,000 से नीचे वाली की तो FDR की इंटरेस्ट तो नहीं है, टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट तो नहीं है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो नहीं है। ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। इफ यू डोंट शो तो कह देंगे वो गलती, और मेरे गलती वलती नहीं है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू शुड नॉट ऑटो पॉपुलेटेड 26 की इंफॉर्मेशन होगी, बाकी तो आपको डालनी है। सो डोंट थिंक दैट यू आर ये सेफ हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यू आर बीइंग चेक्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो ये मैं आपको बता दूं। 39A चेताली कह रही थी, देखिए लोगों के पास पैन नंबर नहीं है तो एक नया और डाल दिया। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन, इफ यू एंटर इनटू ए सर्टेन ट्रांजैक्शन विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो उसके लिए भी पैन लेना मैंडेटरी होगा। पहले भी तो मैंडेटरी है, 2.5 लाख से ऊपर इनकम हो तो मैंडेटरी है, 5 लाख से ज़्यादा टर्नओवर हो तो मैंडेटरी है, 139(4)A की रिटर्न भरनी हो तो मैंडेटरी है। आपको पता है कि 113 वाई में, लेकिन एक और डाल, वो भी मैंडेटरी है जो 2.5 लाख के ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करे अदर देन इंडिविजुअल, उसके लिए भी मैंडेटरी है, उसके डायरेक्टर पार्टनर्स के लिए भी डायरेक्ट है। एक और डाल दिया, इफ यू एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन विच में बी प्रिस्क्राइब यू विल हैव टू अप्लाई फॉर पैन, यू विल हैव टू अप्लाई फॉर पैन। ये तो वहां डाल दिया। अगर आपने पैन अप्लाई नहीं तो वहां सेक्शन 139 ने 6A 6B डाल दिया, आपको कोट करना पड़ेगा वो पैन नंबर। और दूसरा डाल दिया, जो रिसीव कर रहा है उसको पूछना पड़ेगा तेरा पैन नंबर क्या है। अब दूसरी चीज, आपके पास पैन नहीं है, आधार है, कोई बात नहीं, आप आधार नंबर डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको पैन नंबर मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आप आधार नंबर डाल के रेट भरिए, आपको पैन नंबर अपने आप अलॉट कर देंगे, अपने आप अलॉट कर देंगे। और आपके पास पैन नंबर है तो आधार नंबर से आपको लिंक करना जरूरी हो गया। तो 139AA में लिखा है आधार में लिंक करिए, पहले लिखा था रिटर्न इनवैलिड हो जाए, वो इनवैलिड होगा नहीं, वो कहता पैन ही इनऑपरेटिव कर देंगे दोबारा अगर आप नहीं देंगे। और अब आपके पास आधार से भी लिंक कर देंगे, और आधार दीजिए या पैन दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाए। ये 139A और 139AA में चेंज डाला है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट चेंज सर, बहुत मेरे को टेलीफोन आते थे सर, 1010D की एक वो है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था मोर देन 10%, क्योंकि 10% ज़्यादा करो तो 10% ज़्यादा करो तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जो वापस आता तो माफ़ है। लेकिन अगर आपने प्रीमियम 10% से ज़्यादा किया, डिसेबिलिटी के लिए 15 से ज़्यादा किया, तो जितना पैसा वापस आता है वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। उसके लिए TDS था 194DA में, लेकिन बेवकूफ़ इतने हैं कि लिख दिया TDS टू बी डिडक्टेड ऑन द सम रिसीप्ट। अरे सम पेड में TDS है, वो 10 लाख की मैंने 6 लाख दिया था पॉलिसी के लिए इतने सालों में, मुझे 9 लाख मिल गया। क्या मेरी 9 लाख इनकम है? मेरी इनकम तो 3 ही होनी चाहिए, 6 तो मैंने खुद दिया था। तो आप मेरे पे 9 लाख के ऊपर TDS काट के, और वो कहता था 9 लाख के ऊपर टैक्स दो, डिपार्टमेंट कहता था 9 लाख पे टैक्स दो। मैं कहता था मेरा प्रॉफिट तो 3 है, इनकम तो 3 है, 6 तो मेरा अपना पैसा दिया था और 9 वापस मिला। आप मेरे को ये कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो कहते थे नहीं। अब 194DA में ठीक कर दिया है, TDS टू बी डिडक्टेड, पहले 1% था, 5 कर दिया, बट ओनली ऑन द इनकम, ओनली ऑन द इनकम, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड एंड द अमाउंट पेड। तो क्लियर हो गया। अब आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। रिटर्नों में भी डिफिकल्टी आ रही थी, सभी फ़ोन करते थे, मैंने कहा हो जाएगा, लेकिन लॉ चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया। आगे से आपको इनकम पे देना है, और लेकिन TDS 5% कटेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, 5 कटेगा तो कटेगा, वो तो हमें क्रेडिट मिल ही जाना है। लेकिन कम से कम अब सिर्फ इनकम पे टैक्स लगना है, ग्रॉस वाला जो डिस्प्यूट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चीज देखिए, सेक्शन 194C और 194J कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट पर्सनल यूज के लिए करिए, रवि जी ने अपना नया ऑफिस बनाया, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट पर्सनल यूज है, ऑफिस के लिए नहीं। तो घर बनाया तो पर्सनल यूज है, ऑफिस बनाया तो ऑफिशियल यूज। इन्होंने पर्सनल यूज के लिए मकान बनाया, कंस्ट्रक्शन की कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, और इनके केस में पर्सनल यूज है। यहां पर इंडिविजुअल HUF वो वाला है जिसका टैक्स ऑडिट नहीं होता,
तो टीडीएस नहीं कटता अंडर 194C, अंडर 194J। कोई ऑडिट नहीं होता जिसका प्रीवियस ईयर में जिसके टैक्स ऑडिट से कम है उसको इस टीडीएस नहीं कटता। या आप पर्सनल यूज के लिए कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करते हैं या प्रोफेशनल सर्विस की पेमेंट करते हैं तो टीडीएस नहीं कटता। लेकिन यही तो गड़बड़ कर रहे थे, तो लिख दिया कि एक सेक्शन डाला 194M कि इफ यू आर एन इंडिविजुअल और HUF एंड यू आर नॉट कवर्ड, you are not you are not supposed to deduct the tax under 194C or 194J, क्योंकि आपके पर्सनल यूज था या आपके ऑडिट नहीं होता था। Now you will have to deduct the tax at the rate of 5% of the amount paid for contract, including the labor of that contract or for professional services during the financial year। लेकिन क्या बेड़ा गर्क किया है, प्रोवाइडेड इट एक्सीड्स 50 लाख। कौन सा प्रोफेशनल 50 लाख वाला होगा जिसको मैंने पेमेंट दी और उसका टीडीएस नहीं, उसके भी उन्होंने इनकम टैक्स। तो पॉइंट ये है, ये 5 लाख रखना चाहिए था ताकि 5 से ऊपर कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करें या प्रोफेशनल को पेमेंट करें, और आपने टीडीएस नहीं काटा, अब काटना पड़ेगा। 50 तो बहुत ज़्यादा है, 50 तो बहुत ज़्यादा है, ये कर दिया। और दूसरी बात, ये टीडीएस काट कर आपको काटना है लेकिन आपको 10 नहीं लेना है। मैं एक घर बना रहा हूँ, आपने अपना घर बनाया, अब आपका कोई बिजनेस नहीं है तो क्या करें, टीडीएस तो काटना पड़ेगा। और 50 लाख से ज़्यादा पेमेंट है, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल वगैरह सब मिलाकर, प्रोफेशनल में आर्किटेक्ट वगैरह आ जाते हैं ना, सब मिलाकर 50 से ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 5%। लेकिन जैसे 194IA की पेमेंट करते थे, चालान कम वो स्टेटमेंट, इस तरह ये भी 194IA में पैन नंबर डालिए और पेमेंट टीडीएस डबल करा दीजिए 194, ये आपको करना पड़ेगा। जो 50 केटरिंग सर्विस, शादियां होती हैं, केटरर का बिल है 50 लाख से ऊपर और आप टीडीएस तो काटते ही नहीं, और वो केटरर पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा वो है। अब आपको ये अगर पर्सनल यूज है केटरर को पेमेंट करना, लेकिन फिर भी टीडीएस अब काटना। ये 50 को मैं बता रहा हूँ, गलती हो गई, किसी ने गड़बड़ कर दी, वो ज़ीरो ज़्यादा लग गई है, 5 लाख ही होनी चाहिए। ये 194M आ गया है, और सर कंट्रोल तो तभी होगा जब 5 लाख, 50 लाख में तो कोई फायदा ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ 194N तो वही है कि लोग पैसा निकलवाते हैं बैंक से, कैश। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, निकालिए। वाई दे वांट टू विड्रॉ कैश? 1-1 करोड़ रुपया कहते हैं जी 1 करोड़ तक निकालेंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी हैं, दे विल हैव टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 2% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़, यहाँ करंट अकाउंट नहीं है, किसी भी अकाउंट से निकालेंगे मोर देन 1 करोड़ एज कैश, तो बैंक 2% टीडीएस काटेगा। टीडीएस परसेंटेज से इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो मॉनिटर हो गया कि इतना पैसा इसका निकला हुआ है। और उस पे क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर क्यों करा, क्योंकि हमें क्या पता वो 1 करोड़ निकालेगा, 1 करोड़ से कम निकालेगा, तो बैंक कैसे निकाले। पर ये पर ब्रांच पर बैंक होगा। आपके 3 अकाउंट है, सिंडिकेट बैंक में अलग है, पंजाब नेशनल बैंक में अलग है और स्टेट बैंक में अलग है, तो पर वन बैंक होगा, 1 ब्रांच नहीं 1 बैंक। लेकिन एक बैंक को क्या पता दूसरे बैंक में कितना निकाला, तो आप दूसरे बैंकों से निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। पर बैंक की फीस, बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग है, एक बैंक में आप 10 जगह अकाउंट खोला वो तो एक ही माना जाता है। सो कोर बैंकिंग है। सो इफ यू विड्रॉ मोर देन 1 करोड़, द बैंक or the post office or the cooperative bank will be under an obligation to deduct tax at the rate of 2% of an amount exceeding 1 crore। सबके लिए नहीं है, अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ पे काटना है और दूसरे पे नहीं काटना। कभी आप दूसरे पे भी काटने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं। हाँ जी, फाइनेंशियल दोनों एग्रीगेट अमाउंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। क्यों चैलेंज कर सकते हैं सर? है जी सर, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस सिर्फ इनकम पे काटते हैं, एनी सम पेड पे भी काटते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टीडीएस सिर्फ इनकम पे भी काटा जाता है। आप ये कह रहे हैं कि इनकम पे काटा जाता है और एनी सम पेड पे भी काटा जाता है, तो
तो ये इसलिए यहाँ ले लिया। वो वेदर इट इज इनकम और नॉट, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। वी वांट टू कंट्रोल दैट द ट्रांजेक्शंस शुड कम टू अवर न्यू, कि ये कोई गड़बड़ ये कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो आपने काटा। अब आप कह रहे हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सिर्फ इनकम के लिए होता है। पर आपको मैं बता दूं, ये पॉइंट उनके दिमाग में था, लेकिन उन्होंने कहा टीडीएस तो हम किसी भी सम पेड पे करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो इनकम हो या ना हो। तो 195 सेक्शन में भी वैसा है। बस अभी और आ रहा हूँ सर, ये याद रखनिया कि जो हम टीडीएस काटेंगे सैलरी पर, और वो सैलरी अगर 2 करोड़ से ऊपर है या 5 करोड़ से ऊपर है, तो टीडीएस में वो सरचार्ज जोड़ के काटना है। क्योंकि डोमेस्टिक को पेमेंट जो करते हैं उसमें सरचार्ज सिर्फ एक ही आइटम में जुड़ता है, और वो है सैलरी। बाकी में किसी में सरचार्ज नहीं है, बाकी में तो बेसिक रेट है। लेकिन सैलरी का टीडीएस काटते हुए अगर उस आदमी की सैलरी 2 करोड़ से ऊपर है, पहले भी करते थे 1 करोड़ से ऊपर है तो 15% देखते थे, या 50 लाख से ऊपर है तो 10% देखते थे। अब 1 करोड़ से 2 करोड़ से ऊपर है तो टीडीएस के लिए वो सरचार्ज जुड़ना है। 5 करोड़ से ऊपर है टीडीएस के लिए वो सरचार्ज जुड़ना है। और कोई भी पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करेंगे 195 में आता है उन्होंने, तो अगर वो पेमेंट 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 25% लेना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट 5 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 37% लेना पड़ेगा। ये बी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट यू इंक्लूड सरचार्ज एज वेल एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बट इन द केस ऑफ रेजिडेंट यू ओनली इंक्लूड सरचार्ज ओनली इन वन केस, surcharge and cess only in case of salary. So be careful that while you are deducting, you have to see this, that you are deducting the surcharge on this amount also. Well, fine, 2 चीजें और बताता हूँ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के टाइम पर कईयों ने पैसे जमा नहीं करा सके, तो वो इंस्टॉलमेंट में जमा होने थे, कईयों ने नहीं कराया तो वो डिक्लेरेशन स्कीम तो नल एंड वाइड हो जानी चाहिए थी। इन्होंने एक अभी डाला है, बेनिफिट दे दिया है कि अगर आपने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का जो टैक्स था, जो इंटरेस्ट था, जो पेनल्टी थी, टैक्स और पेनल्टी थी, अगर आपने जमा नहीं कराई थी ड्यू डेट तक, अब हम एक डेट प्रिस्क्राइब करेंगे, नोटिफाई करेंगे, आप वो टैक्स, वो पेनल्टी विद इंटरेस्ट 1% अगर जमा करा देंगे तो हम उसका बेनिफिट आपको आईडीएस का दे देंगे। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, क्योंकि लोग कह रहे थे सर मिस हो गया। मिस नहीं हो गया, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे पैसे ही नहीं थे तो जमा कहाँ से कराते। वो डिमोनेटाइजेशन बीच में हो गया था और वो इंस्टॉलमेंट देनी थी, पैसे ही नहीं थे। एम आई राइट और रॉन्ग? और सभी कह रहे थे सर ये हो गया, अब क्या करें, वो तो बेकार हो गया, हमारा तो आईडीएस ही खराब हो गया। ये रिलीफ दे दिया, एमनेस्टी दे दी कि जिसका आईडीएस करा हुआ था और जिसने पेमेंट जमा नहीं करा सका अब करा दे, और उसके साथ अब क्या करा दे, कुछ तो मिलेगा। जो मिला था वो भी गया तो करा ले, हम इंटरेस्ट साथ में दे दे, हम उसको रिलीफ ये दे देंगे। सो दिस इज ए ग्रेट रिलीफ फॉर दोज हु हैड डिक्लेयर्ड इनकम डिक्लेरेशन स्कीम बट कुड नॉट पे टैक्स और पेनल्टी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पूरी या हाफ जितना भी था उतना आप लेके इंटरेस्ट दीजिए, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। एक और ब्लैक मनी स्कीम है, और ब्लैक मनी बिल, वो जो क्या है ब्लैक मनी एक्ट, अनडिस्क्लोज्ड इनकम ब्लैक मनी एक्ट, कि अगर आप रेजिडेंट हैं और आपके पास एसेट्स आउटसाइड इंडिया है या इनकम आउटसाइड इंडिया है तो आपको एक एमनेस्टी दी गई थी कि आप इस डेट तक डिक्लेयर कर दीजिए और 60% टैक्स दे दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद आपकी इम्प्रिजमेंट भी होगी और आपको वो पेनल्टी भी लगेगी और टैक्स तो देना ही देना है। पर वो लिखा था इन केस ऑफ ए रेजिडेंट हु हैज प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया और हु हैज इनकम आउटसाइड इंडिया, उसको लगेगी। अब नीरव मोदी तो नॉन रेजिडेंट हो गए, मलिया साहब भी वहां हो गए हैं, चौकसी साहब भी वहां चले गए हैं। वो कहेगा मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं, वो तो रेजिडेंट का है और रेजिडेंट तो हूं नहीं मैं, तो आप मुझे अब ब्लैक मनी में कैसे पकड़ लोगे? मेरी बात को समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा रुको, हम चेंज कर रहे हैं, ब्लैक मनी एक्ट को चेंज कर दिया कि जिस टाइम पे आपने पैसा वहां लिया कमाया था या जिस टाइम पे प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी उस टाइम पर अगर आप रेजिडेंट थे तो आज नॉन रेजिडेंट हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए? लोगों को पता ही नहीं है कि लॉ नीरव मोदी को छोड़ेगा नहीं छोड़ रहे, चौकसी को छोड़ेगा नहीं, ललित मोदी को छोड़ेगा नहीं, सारे ही मोदी फंसे हुए हैं बीच में, मुझे नहीं पता।
छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब आपका प्रूफ हो गया कि आपकी मनी स्विस बैंक में पड़ी हुई है, आपकी एसेट आउटसाइड इंडिया है। लेकिन अब तो आप कहते हो मैं नॉन रेजिडेंट हूं, आप मुझे कैसे पकड़ सकते हो, मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं। कहता ना, उस वक्त रेजिडेंट थे जिस वक्त पैसा आपने वहां जमा कराया था, या उस वक्त रेजिडेंट थे जब आपने एसेट वहां अक्वायर करी थी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आप रेजिडेंट हैं या नहीं है, आप ब्लैक मनी के अंदर आएंगे और आकर प्रोसिक्यूशन भी होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। ये दो चीज़ें मैंने इसलिए बताई सर, आपने नहीं डाली होंगी, मैंने कहा मैं ऐड डाली। नकल करने में तो देर थोड़ी लगती है। सॉरी सर, नकल ही तो अकल होती है, बाकी कहाँ होती है। सर हमें भी तो देखो, रात को 1 बजे सोए थे, 3 बजे उठ गए और यहाँ आकर बोल रहे हैं और 5 लेक्चर और देंगे, क्योंकि नहीं देंगे। अगर कागज पकड़ लिया तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ये भी तो दिक्कत है ना, रेपुटेशन के लिए याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर इनको बताना पड़ता है कि आपको ये फायदे होने वाले ATIPA में। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मैंने कोशिश करके सारे डाल दिए। छोटे मोटे मैंने 9A नहीं लिया, आपके मतलब का नहीं है। मैंने 92CC नहीं, वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं लिया। सेकेंडरी एडजस्टमेंट में पहले क्या होता है, मैं एक बता दूं। प्राइमरी आर्म लेंथ प्राइस वाला केस था ना, नॉन रेजिडेंट को आर्म लेंथ प्राइस पे होता है। कई बार हमने माल खरीदा बाहर से या बाहर पेमेंट करी 5 करोड़ की, आर्म लेंथ प्राइस 4 करोड़ की थी, तो मुझे 4 करोड़ का डिडक्शन मिलता था 4 करोड़ का, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस 4 करोड़। लेकिन हमने पैसा तो 5 करोड़ भेज दिया, 5 ही भेजा, तो मेरा 1 करोड़ तो चला गया कंट्री से। तो वहां कहते थे सेकेंडरी एडजस्टमेंट में उस करोड़ को इंडिया लाओ वापस, उस करोड़ को क्या करो, इंडिया वापस लाओ, क्योंकि आपने 5 करोड़ क्यों भेजे, 4 करोड़ रहने थे। टैक्स तो मैंने 4 करोड़ आपको अलाउ 4 करोड़ की है, तो 1 करोड़ वापस लाओ। अब क्या कहना, वापस नहीं लाना चाहते, कोई बात नहीं, उस 1 करोड़ पर 18% टैक्स दे दो प्लस सरचार्ज, फिर मत लो, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मतलब हम कुछ तो कमाएंगे ही उसमें, क्योंकि पैसे वहां से आने नहीं है और ये दिक्कत हो रही थी, तो रिलैक्स कर दिया। पे 18% टैक्स ऑन दैट प्लस सरचार्ज 12% आप दे देंगे, तो फिर हमें वो पैसे लाने की यहाँ जरूरत नहीं है, हमें टैक्स दे दीजिए और साथ में इंटरेस्ट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दिस इज द अनदर एडवांटेज जो 92CE में डाला, ये उसके लिए डाला है। और 92CD में वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंशियल सेंटर मैंने इसलिए नहीं लिया कि पहले ही सवेरे से बोर हो रहे हैं, इतनी देर हो गई, 2-2.5 घंटे हो गए बैठे हुए। मैंने, आप कैसे सुन लेते हैं, मैं तो 1.5 घंटे में बोर हो गया था सुनता सुनता, क्योंकि आदत नहीं है सुनने की, सुनाने की आदत है। कभी बीवी सुनती है ना, सुनाती है, उसको सुनाने की आदत है, सुन तो सकती नहीं। तो मैं भी सुन नहीं सकता था, लेकिन जब 1.5 घंटे में बैठ गया, थक गया, मैं कहा मर गया मैं तो। थैंक यू वेरी मच, आपकी पेशेंस का मैं कमाल करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।